learn a divine science like Ayurveda, what we really need is a burning desire. से ज्यादा देशों में जिन्होंने आयुर्वेद को पहुंचाया है। डॉक्टर राज सर, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। बहुत सारे लोग साउथ इंडिया से आए, कहाँ हैं साउथ इंडियंस? तो आज हम थोड़ा इंग्लिश प्रेफरेंस अगर रख सके तो इट वुड बी मोर बेटर फॉर अस। चलेगा इंग्लिश? ओके, तो थैंक यू सो मच साउथ इंडियंस। आई डोंट नो इंग्लिश, he knows, he will tell, he will speak, sorry, okay, let me frame sentence, ऐसा हो जाएगा फिर मेरे साथ। Ladies and gentlemen, मजाक से हट के हम सब वेलकम करते हैं डॉक्टर राज सर का, one of the finest personality. Please we'll put your hands together, उनका इंट्रोडक्शन बहुत बड़ा है, उनके बच्चे अगर तालियां बजाएंगे तो वो ज्यादा खुश होंगे। डॉक्टर राज सर, प्लीज join us on the stage, sir. Skin diseases, इंग्लिश प्रेफरेंस मैंने मैसेज कन्वे कर दिया साउथ इंडियंस का। ये राजस्थानी परंपरा के अनुसार हम सब पगड़ी पहनाकर इस समय वेलकम कर रहे हैं और हमारे आराध्य हमारे भुवन मोहन का एक चित्र देकर। Such a wonderful city like Pink City. So it's my honor to be here, and I express sincerest gratitude to the organizers. It takes a lot of contribution, almost I think more than 6 to 8 months. Right from Dr. Dikshit, Dr. Ved has been very kind, he's been coordinating with my team lately. So gratitude to the entire organizers, and it's a privilege for us or everyone, because of the organizers we are here and we could learn something. My guru says 1 session is equal to 6 books. I will make sure my 1 hour of session is equal to 60 books at least. It is beautifully said as, pain wanders through my bones in a lost fire. Bones, I can feel it, feel in my bones. You're very good, I feel it in my bones. बोलते ना? Pain wanders through my bones in a lost fire. Do you know what burns me now? I repeat again, pain wanders through my bones in a lost fire. Do you know what burns me now? Desire, desire, desire. To be successful, to learn anything, we need a burning desire. To learn a divine science like Ayurveda, what we really need is a burning desire. Firstly, we must, all over here who are there, we must be very lucky कि आयुर्वेद जैसे परिपूर्ण शास्त्र, डिवाइन शास्त्र में हमें सीखने का मौका मिला है. It's a privilege. It's honestly a privilege to learn and practice Ayurveda. Every day across the globe I travel, I practice, I see people of 110 nationalities. I understand कि सभी disorders में अभी तक अल्पकाल में दीर्घकाल तक उपशय देने वाला, there's only one science which is Ayurveda. But there's one thing that we really need, which is a burning desire to learn. It is not important कि you've come for the exhibition. It's not important कि आपके सामने किताब है. What's important is आपका मन उस किताब में कितना है, आपका मन इस सेशन में कितना है. So I expect pure attention in this classical Ayurveda session. And I would need your participation in the questions as well. Firstly, how many practitioners over here? How many doctors? Bare minimum. How many students? Wonderful. Wonderful. Okay. Firstly, let's understand why should you practice dermatology. It is a boom. Number 1 seat is dermatology. We see it is most demanding. Now day after tomorrow we're going to South Korea again. 20 years ahead in terms of skin industry. भारत जो इंडिया है, इट्स नोन एज द स्वर्ण नगरी. इंडिया को गोल्ड माना जाता था इन ऑल द अदर कंट्रीज, एंड पीपल सिंस द एंशिएंट टाइम्स वर अट्रैक्टेड टू द प्रिंसिपल्स एंड टू द कल्चर, टू योग, टू आयुर्वेद, टू अष्टांग योग. दे वर ऑलवेज अट्रैक्टेड टू व्हाट इंडिया ऑफर्स. इवन नाउ द वर्ल्ड इज ऑल बिहाइंड इंडिया में क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग इन इंडिया. Considering not just skin, but in every science or every field, we see Ayurveda के results are to the core. Whichever disorder you name on the internet, you'll find relapse, reoccurrence. But when it comes to dermatology, for such a difficult disorders, we see Ayurveda has results where there is no relapse and no reoccurrence. We'll learn that in this session. So most demanding. Second, you see visible results. Whether a patient has vitiligo, you can show them 15 days, see the changes. A month, you see the changes. Nobody will tell you, nahi, abhi bhi pain hota hai. No pain, na? You can see the results. You can show them the
changes. So that's another benefit, visible results. Next thing, it's the most appreciated feeling. किसी की skin को clear करना. Today we live in an outer world as well. Aesthetically अच्छा करना या dermatologically अच्छा करना, both are different things. But this is the most appreciated feeling in today's time. We see social and work-life balance. A lot of people have left their work, have left a complete life because they know कि मुझे ये जो eczema है ये मेरे साथ lifelong रहेगा. And when a classical doctor will say that ऐसा नहीं है, so they feel like a very appreciated. It's the most appreciated feeling. Only one science which has the maximum results. Again, we practice a lot of hydrogen, inhalation, a lot of ozone, a lot of aesthetic treatments. But ये पूरे practice में 99.99% what we practice is classical Ayurveda. Why? Because I travel the world and I always want to see कि दुनिया में और ऐसा क्या है? क्या जो जापान में लोग हाइड्रोजन इनहेल करते हैं क्या उससे स्किन ठीक हो रही है? क्या यूएसए में जो ओजोन चलता है क्या उससे लोग ठीक हो रहे हैं? एंड देन आफ्टर कंक्लूडिंग एवरीथिंग आई अंडरस्टैंड द मोस्ट एंशिएंट साइंस आयुर्वेद और उसके जो तत्व है, उसके जो प्रिंसिपल्स है, इससे बढ़िया, इससे कम टाइम में दीर्घकाल तक फायदा अभी किसी साइंस में नहीं है. सो मैक्सिमम मोडालिटीज you can treat them with kashta aushadhi, you can treat them with rasakalpa, you can treat them with just the bahya upchar, you can treat them with just panchakarma. So maximum treatment modalities आज available है, तो वो है केवल आयुर्वेद. We come to the straight to the case. This is a case of eczema. The person comes from US. I want to tell you one thing. This is called as eczema. विचर्चिका के नाम से हम इसे जानते हैं. आज हमारा टॉपिक है कुष्ठ विकार, राइट? कुष्णाति वपु, यानी कुष्ठ, त्वचा जब सड़ती है तो उसको कुष्णाति वपु कहते हैं, उसे कुष्ठ विकार कहते हैं. एक्जिमा ने सिर्फ विचर्चिका नहीं, हर कुष्ठ में दोष हम डिसाइड करते हैं, वैद्य डिसाइड करते हैं. वी कैन नॉट लेबल कि सोराइसिस ये एक कुष्ठ हो गया, एक्जिमा ये विचर्चिका हो गया. नो, द ट्रीटमेंट विल ऑलवेज चेंज एज पर द दोषेस दैट वी डिसाइड. दिस इज एक्जिमा. आई वांट टू टेल यू ऑल, अगर यूएसए में 10 पेशेंट्स या 10 बच्चे अगर जन्म होते हैं तो रिसर्च का कहना है 60% प्लस हैव एलर्जीज और उसमें 90% पीपल हैव एक्जिमा. There are 7 forms of eczema as per the modern science. The number 1 is the atopic dermatitis. This is atopic dermatitis. हमने देखा है आयुर्वेद से आज 2000 plus on data, there is no relapse after 5 years period. No relapse. These people, if they don't take a steroid or apply a steroid for 4 hours, they will start bleeding. This is the case of eczema. India में भी काफी common है, but if you really want to go internationally, this is the case that you can master, which is eczema. All over the globe आज बताया गया, all over the globe इसका कोई उपाय नहीं है. I will put down the principles right over here, because कोई भी केस में हमें एक ही चीज जानना है कि हेतुलिंग औषध ज्ञान, स्वस्थ रूपरायणम, त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्य बुबुद्धे पितामह. अगर आप हेतुलिंग औषध जानते हो, अगर आप त्रिसूत्र जानते हो, अगर आप शास्त्र जानते हो, तो एक्जिमा क्या कोई भी कुष्ठ विकार ठीक होता है. और आज हम यहाँ पर दवाई पूरी, आई एम गोइंग टू मेंशन इट, बट वो नहीं सीखने आ रहे. हम आज सीखने आ रहे हैं कि तत्व क्या है. We're going to talk about results because that's all that matters. बाकी सब secondary, right? So if you really want to cure in a way कि वो relapse होना ही नहीं चाहिए, this cure, this is your eczema, okay? Eczema की केस में काफी बच्चों के eyebrows चले जाते हैं, it totally comes back again. Eczema एक ऐसी केस, as I mentioned, कि एक दिन भी अगर steroid लिया, एक दिन, तो they will bleed. और ये 1-2 साल नहीं, ये patients को बताया जाता है कि you will have to be like this lifelong. आप इमेजिन करिए उन पेरेंट्स पे, उन बच्चों पे क्या बीतती होगी जब उनको ये पता चलता है कि एक्जिमा इज लाइफलॉन्ग. We'll understand from Ayurveda point of view. कंडु व्रण रसव रक्तव मौसम स्रोतस की दृष्टि है. For every disorder we also need to understand from the modern science. Modern science में बताया कि DNA में फिलाग्रिन नाम का एक इंग्रेडिएंट होता है, फिलाग्रिन. There is a deficiency of फिलाग्रिन. And because of the deficiency, जन्म होने के बाद से ही उनमें क्या होता है, स्किन इज ऑलवेज ड्राई. स्किन ड्राई होगी तो कट्स आना, स्केल्स आना, ब्लीडिंग होना ज्यादा कॉमन है. चिकित्सा तत्व क्या है? अभी फर्स्ट लिखा है क्लेदनाशक. आप सबको पता है कि मूत्रस्य क्लेदवहनम, हमें क्लेद अगर हम ज्यादा निकालते हैं तो कुष्ठ विकार ठीक होते हैं. पर हमें ये जानना है कि एक्जिमा के पेशेंट्स में क्या बताया, सिद्धम वृक्षम अतिस्निग्धम. ये आयुर्वेद का व्याख्या है. कैसे ना हम डेविडसन में और हैरिसन में क्या पढ़ते हैं, ग्रीसी कैंडी अपीयरेंस, तो हमें बहुत अच्छा लगता है कैंडी ग्रीसी अपीयरेंस, राइट, डेविडसन. बट हम हमारे शास्त्र करके बताते हैं सिद्धम वृक्षम अति स्निग्धम. सिद्धम वृक्षम अति स्निग्धम, ऊपर है ड्राइनेस, नीचे है वेटनेस.
दैट सेम व्हाट यू फाइंड इन एक्जिमा. ऊपर का लेयर पूरा ड्राई है, नीचे का लेयर पूरा वेट है, एंड वी सी पीपल जहाँ इतनी थिक स्किन है एंड देयर इज नो ट्रीटमेंट इन द वर्ल्ड, राइट. सो क्लेदनाशक कफ वातग्न पंडुनाशक ये चिकित्सा तत्व है. ओके, सो ऐसे पेशेंट्स में अपने क्या करना है, वील अंडरस्टैंड दैट. ओके, नेक्स्ट स्लाइड. हम सबको पता है कि अगर त्वचा रुक्ष है और विष का ट्रीटमेंट हमें करना है, विष की चिकित्सा करनी है, तो सबसे उत्तम विषग्न दवा कौन सी है? उसी तरीके से हमें देखना है कि अगर हमारा त्वचा ड्राई है, तो अगर हम स्नेह द्रव्य में बात करें, स्निग्धत्व में बात करें, तो सबसे पहला आता है घृत. घृत का सेवन अगर करने देते हैं तो त्वचा की रुक्षता धीरे धीरे निकलने वाली है. सभी घृत में हम देखते हैं कि महातिक्त घृत जो है ये विषग्न कार्य करता है. सो ऐसे दवाई हमें चाहिए जो वृष्य कार्य भी करे और जो स्निग्धत्व को भी कम करे. जैसे शतावरी. शतावरी क्या है? मधुर शीत होने के बावजूद वो शरीर में स्निग्धता लाती है. तो हमें फिर ऐसा टाइप का पढ़ाई करना होगा, हमें फिर इस तरीके की पढ़ाई करना होगा जहां पर दवाई मधुर है, शीत है और स्निग्धत्व भी ला रही है. तो उसमें से एक शतावरी है. शतावरी हो गया, महातिक्त हो गया, कल्याणक जिसे मन पे जाने वाली दवाई हो गई. इस तरीके की दवाई हम करेंगे तो हम क्या देखते हैं कि स्निग्धत्व आ रहा है. इस केस में हमें देखना है कि पित्त को भी कम करने के लिए रेचक दवा जैसे आरगवत हो गया, कंपिलक हो गया, जो कृमि का नाश कर रहे हैं, पित्त का रेचन कर रहे हैं. उसी तरीके से रक्त प्रसादन के लिए अनंतमूल मंजिष्ठा, ये फांड स्वरूप में, क्योंकि फांड ये सूक्ष्म स्रोतस पे उसका एक कार्य रहेगा, इसलिए अमफांड, रसपाचक जैसे दवाएं. हमने स्किन डिसऑर्डर्स में आज तक ये एक्सपीरियंस किया है, आप कोई भी प्रकार के दवा आप उनको अपान काल में दो, आप उनको व्यानोदान दो, बट व्हेन यू स्टार्ट गिविंग मेडिसिन फॉर कुष्ठ विकार एट द समान काल, तो आप उसमें एक रेडिकल शिफ्ट देखते हो, आप उसमें एक ट्रांसपेरेंट एक शिफ्ट देखते हो. चंद्रकला जैसे दवा जो रक्त पित्तग्न है, ज्वरग्न है, स्तंभनीय है, पित्त को कम करते हैं इमीडिएट पे. वन ऑफ द इमरजेंसी मेडिसिन में चंद्रकला का काफी उपयोग किया जाता है. तो चंद्रकला और प्रपंच जैसे दवाई जो शीत भी है, कंडुग्न भी है और जो स्तंभन कार्य भी कर रहे हैं. टू ब्रिंग डाउन द एलर्जीज, अगेन यकृत घनता के हिसाब से हमें नाक परीक्षा, उदर परीक्षा के हिसाब से फलत्रिकादि जैसे दवाई जो यकृत पे जाते हैं, यकृत की घनता कम करते हैं, ऐसे प्रकार के दवाई सही प्रमाण में, सही तरीके से, दोषानुसार अगर हम इसे इस्तेमाल करते हैं तो हम बेहतरीन फायदा देखते हैं एक्जिमा, विचर्चिका, कुष्ठ के इस प्रकार के पेशेंट्स में. सभी तरह के कुष्ठ विकार में वेरी इंपॉर्टेंट इज ऑल्सो पथ्य. पथ्य को भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दिया है? बिकॉज हमें बताया है कि प्रमेह पीड़िका है, डायबिटिक फुट है, वेरिकोज अल्सर है. तो ये वेरिकोज अल्सर में हम क्या देखते हैं? लॉट ऑफ पित्त. सो ऐसी कंडीशन में बताया है कि उपवास करना चाहिए, यू मस्ट डू फास्टिंग. पेशेंट्स को लाहिया पे रखने, दूधी है, सफेद पेटा है, पेशेंट को फलों वाली सब्जियां पे रखने. इस तरीके के आहार पे अगर पेशेंट्स को हम रखते हैं, पेशेंट्स को बता दें कि आपको यही लेना है. Whenever you are hungry, you must take Sari Chalaya, you must take Laja Mand. And when you take this, we see your results will have 10x impact. Let me tell you, you give the best treatment in the world. But if patient is having rice, a lot of heavy foods, a lot of curries, even if it's a veg or a non-veg, अगर curries खा रहे हैं तो भी हम देखते हैं कि पेशेंट्स को उन दवाइयों का ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा. So you need to put them on तिक्त रसात्मक आहार. इस तरीके का सफ़ेद यहाँ पर आता है सफ़ेद बैंगन, which is also like a medicine. If you study from a modern science point of view, these are all that are adding filaggrin to the. In today's world, there is no medicine at all अभी तक जो आया है which can even give the patient a relief for more than 6 to 8 hours. 6 से 8 घंटे के लिए यूरिया वाला, ग्लिसरीन, रोज वाटर, लिक्विड, पैराफिन, all these jets will have zero impact. 6 घंटे से ज़्यादा पेशेंट को बताया कि you have no change, skin comes back to zero. My dear friends, let me tell you, Ayurveda is the only science जहाँ पर पेशेंट्स फर्स्ट मंथ पे बताते हैं. मैं यहाँ पर 1, 10, 100 पेशेंट्स की बात नहीं कर रहा, टॉकिंग अबाउट मोर देन 5000 पीपल, जहाँ हर एक पेशेंट ने ये कहा है कि इन अ मंथ, इन 2 मंथ वी एक्सपीरियंस कि अभी 8 दिन मॉइस्चराइजर नहीं लगाए तो भी चलता है, 3 महीने नहीं लगाए तो भी आई एम फाइन. सो आज दुनिया भर में कोई केस अगर नहीं ट्रीट हो रही है तो वो ट्रीट होने का एक ही रीजन है, शुद्ध आयुर्वेद चिकित्सा. We'll understand about the सूत्रस. ओके, मत्स्य, त्वचा दिखती है, हस्तपाद, पृष्ठ, उदर, श्यामवर्ण, वेदना है. कॉज में अगर हम देखेंगे फ्रॉम मॉडर्न साइंस पॉइंट ऑफ व्यू, इन द डीएनए इट इज सेड दैट दिस इंग्रेडिएंट फिलाग्रिन इज मिसिंग. अभी फिलाग्रिन मिसिंग है, इसलिए वर्ल्ड वाइड नॉट इवन 5 to 10% पेशेंट्स आर प्रेजेंट टुडे दैट विल से कि हमारी ये फिश की स्किन जो है
ये थोड़ा बहुत इंप्रूव भी कर सकती है. नो, यू अप्लाई मॉइस्चराइजर, 6 hours relief, coming back to zero. And you try all the treatments, this is the only possible thing which is urea. Missing है फिलहाल. तो अगेन आयुर्वेद से आप डीएनए तो चेंज नहीं कर सकते, but you can change the composition of the skin for long term. For years and years you can change the entire composition of the skin. Skin का structure change किया जा सकता है. You can't change the DNA, but structure change हो रहा है, right? You need क्लेदनाशक, कफवातक, कंडुनाशक, वेदनास्थापक, रुक्षतनाशक और व्रण रोपक. बिकॉज मैंने जैसे बताया कि अगर ड्राइनेस बहुत ज्यादा होता है तो क्या होने वाला है? दे विल हैव कट्स. हमने 2 स्लाइड्स देखे. पहला स्लाइड क्या देखा? वात, पित्त, कफ. अभी आगे की स्लाइड में हम देखेंगे वात प्लस, राइट? सो इन इक्थियोसिस वी सी लॉट ऑफ रुक्षता, लॉट ऑफ ड्राइनेस. आयुर्वेद इज लाइक अ मैथमेटिक्स. अगर एक प्रकार का वात है तो यू एक्सपीरियंस ड्राइनेस. इफ देयर इज वात प्लस देयर इज ड्राइनेस विद अ लॉट ऑफ स्केलिंग. मैं क्यों कह रहा हूं कि कुष्ठ के ज्यादा विकार रुक्षता के टुवर्ड्स रहते हैं, और इसकी ट्रीटमेंट, इसको समझना हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट? सो इफ वी हैव वात प्लस वी हैव ड्राइनेस, स्केल्स एंड वी हैव लॉट ऑफ फिशर्स, कट्स. चिकित्सा स्थान में चरक ने बताया वातजे सर पे. अभी रेडीली आयुर्वेद दवा में ऐसे अगेन आई जस्ट आस्क यू, कितने प्रकार के स्नेह है? उसमें सबसे उत्तम कौन सा? ऐसी कौन सी दवा है जिसमें चारों स्नेह रेडीली अवेलेबल दवा है? आपको बनानी पड़ेगी, राइट? इजंट इट? चारों प्रकार के स्नेह एक रेडीली मार्केट में अवेलेबल दवा. Isn't that good कि चारों प्रकार के स्नेह जब शरीर में जा रहे हैं तो the amount of स्निग्धत्व that the patient will have is on the next level, and this is nothing but महास्नेह. It is a classical Ayurveda medicine available in various brands. महास्नेह चारों प्रकार के स्नेह है इसमें, और उत्तम प्रकार से वृष्य है, बल्य है, केश विकार हो, रसायन हो, रुक्षता को कम करना हो, महास्नेह के अप्रतिम फायदे. एंड अगेन यू डोंट नीड टू मेक इट, इट्स रेडीली अवेलेबल. मैंने जैसे बताया शतावरी महातिक्त है, और अगेन रुक्षता की चिकित्सा तेल है, इसलिए तेल का स्नेहन अभ्यंतर और बाह्य दोनों प्रकार से हम जब करते हैं तो हम देखते हैं रुक्षता कम होती है. एंड अबाउट दिस तेल स्नेहपान हम आगे के स्लाइड में केस को समझ के बात करेंगे, राइट? सो आर वी क्लियर सो फॉर एवरीवन? इज इट? स्निग्ध द्रव्य है, रसायन करने वाले हैं, विदारी है, शालीपर्णी है, मधुक है, पित्तकर दवा. हमने एक चीज यहाँ पर देखी है कि ये जो पेशेंट्स है, फ्रॉम देयर फर्स्ट डे ऑफ बर्थ टिल द लास्ट डे, लास्ट ब्रेथ, these people, and I have seen people, through Ayurveda at age of 60 and 65 as well, all their life they do not have any kind of sweating. उनमें sweating आज तक कभी हुई नहीं on those areas of the skin. And let me tell you, ऐसे कौन से दोष को बढ़ा के हम देखेंगे कि पेशेंट को स्वेद होने वाला है? पित्त को बढ़ाने वाली हर एक दवा आप जब इस्तेमाल करते हो, वो त्रिभुवन हो, विष्णुन्दुक हो, वो स्वेदोपक महाकषाय हो, ऐसे पित्त को बढ़ाने वाली चिकित्सा से हम देखते हैं कि आज तक जो पेशेंट को स्वेटिंग हुआ नहीं, आज तक विद द वर्ल्ड्स बेस्ट ट्रीटमेंट, योर पेशेंट इन लेस देन 3 months टाइम लाइक स्वेटिंग लाइक एनीथिंग. ही स्टार्ट्स टेलिंग यू सर डू समथिंग कि मेरा स्वेटिंग कम हो जाए. बट ही ऑल्सो अप्रिशिएट्स यू. Every patient appreciates you. In my life, I've never had sweating, but with only your medicine, I've seen that I've started developing sweat, and all glories to Ayurveda. मंजिष्ठादि तेल है. अगेन हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर? डिस्कलरेशन है, डिस्कलरेशन है, ड्राइनेस है, जो स्निग्ध है और रक्त प्रसादन कर रहे हैं, पर एट द सेम टाइम शीत होगा तो रुक्षता तो बढ़ेगी. वैसे कौन सी दवा हम लोकली अप्लाई कर सकते हैं जो उष्ण भी है, रक्त प्रसादक भी है और जो वर्णीय कार्य भी कर रहा है? तो ये मंजिष्ठा. सो हमने 3 पाकी मंजिष्ठा तेल बनाना शुरू किया, एंड वी स्टार्टेड अप्लाइंग, एंड वी स्टार्टेड सीइंग दैट इक्थियोसिस में पेशेंट को स्वेट भी आ रहा है, एंड दे सी अ ट्रेमेंडस चेंज इन देयर डिस्कलरेशन. मात्रा बस्ती हम सबको पता है उसके क्या बेनिफिट्स है, राइट? इज देयर अ स्कोप फॉर आयुर्वेदा? वी नीड टू आस्क आवर ओन सेल्फ, आयुर्वेदा में आज कोई स्कोप है क्या? बिफोर दैट आई वांट टू टेल यू, केवल और केवल आयुर्वेद से आप जो कलर्स टीवी देखते हैं, आप जो मूवीज देखते हैं, अभी जो खतरों के खिलाड़ी, हु वॉचेस खतरों के खिलाड़ी? एवरीवन. द एंटायर सेट न सिर्फ एक बार वमन, बट साल के 2-2 बार वमन करते हैं. मुझे एंटी एजिंग इफेक्ट के लिए आप सबको बताना है. जो विनर, अभी आपको नहीं पता तो विनर करण जो विनर होने वाला है, तो 2 बार साल के वमन, more than 1000 women we do in a year, 10,000 patients per year, around 100 patients per day.
It's October and we've already crossed 900 women. मुझे बता रहे हैं कुछ लोग, the students, we have a lot of maximum 90% students यहाँ पर, और स्टूडेंट लाइफ में समझना कभी डिफिकल्ट है, वो कौन करेगा वॉमिटिंग, द स्मेल, द टेस्ट, क्या कोई कर सकता है? I'll tell you, most of the people in the Bollywood, most of the people in the Hollywood, most of the people in the mostly all the people in the Marathi you will see, साल के 2 बार वमन विरेचन होता ही होता है. बिकॉज आयुर्वेद क्या है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है उनके सामने. वाई एम आई शेयरिंग दिस विथ यू? द ओनली रीजन इज आई हैव सीन पीपल जहाँ उनको बताया जाता है कि आई लुक 5 years younger, आई लुक 6 years younger, आई लुक 8 years younger बाय डूइंग वमन विरेचन. वमन विरेचन का जो एंटी एजिंग इफेक्ट्स के जो बेनिफिट्स है, ये शायद ही किसी बोटॉक्स फिलर्स रेडलिफ्ट्स में होंगे. वी इवन डू अ लॉट ऑफ थ्रेड्स, वी इवन डू अ लॉट ऑफ IPL, we even do a lot of microdermabrasion. We do all of this, but we understand कि केवल और केवल साल में 2-3 बार 2-3 साल तक 1 से 2 बार वमन करने से पेशेंट अल्पकाल में दीर्घ काल तक उसको फायदा होता है. यानी आप सोचिए 10-15 दिन का वमन विरेचन and patient is seeing a tremendous change in your overall well-being. That is the power of पंचकर्मा. आयुर्वेद minus पंचकर्मा is actually 0. तो पंचकर्मा एक सुवर्ण संधि है, हमें उसे अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. So is there a scope for Ayurveda? What is your answer? Is there a scope for Ayurveda? Yes. There is a tremendous scope. It's just that we need to learn how to put it in front of people. There are genetic disorders, there are psoriasis, there are autoimmune conditions. Now let me tell you one thing. We have 2 weekly visits, 2 weeks. Every 2 weeks we have a visit in UAE, Dubai. Being a licensed Ayurveda practitioner, being a DHA approved practitioner, we see our 90% OPDs are filled with those patients of skin disorders जहाँ पर they are kept on a injectable which is an immunosuppressant. जो methotrexate लेते हैं, methotrexate everyone, Polytrex, folic acid, Polytrex once a week, folic acid every day, common protocol, right? कुछ नया नहीं, common protocol. The same injections, similar injection we see in the injectable form. One injection costs around 7,000-8,000 dirhams, which is around somewhere 1.5 lakh. पहले 2-3 अप्रूव होते इंश्योरेंस में, बाकी सब they have to bear with it. I have videos of people 25-30 इंजेक्शन के बाद भी they are delayed for 1 week. If they are delayed by their date for 2 weeks, the entire psoriasis comes back. In such a developed country like Dubai, we experience as skin disorders में doctors will openly tell you you miss an injection, you're gonna have the psoriasis completely back. और हम आयुर्वेद प्रैक्टिशनर्स केवल और केवल भगवान धन्वंतरी की वजह से, केवल और केवल आयुर्वेद की वजह से, केवल और केवल हमारे गुरु की वजह से, आयुर्वेद के कारण हम देखते हैं अल्पकाल में दीर्घ काल तक कोई भी शास्त्र अगर है, कोई भी, तो केवल और केवल किसके कारण? आयुर्वेद के कारण, राइट? सो सोराइसिस मैंने क्यों कहा? बिकॉज इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम टुडे. आगे के टाइम में आप देखो, इट्स गोइंग टू बी द नंबर 1 डिसऑर्डर ऑफ स्किन, नंबर 1. ड्यू टू द सेडेंटरी लाइफस्टाइल विल एक्सपीरियंस नंबर 1 है. और आप आने वाले टाइम में रियली सी, मैं क्यों कह रहा हूँ आपको, आज के टाइम पे आप पेशेंट्स देख रहे हो, कल के टाइम पे आप रोबोट्स के साथ डील करने वाले हो. यानी क्या? द पेशेंट्स विल बी रोबोट्स. यानी क्या? आई डील विद पीपल हु हैव 80 mg प्रेडनिसोलोन एवरी डे. अभी आप मुझे बताइए कि रोबोट जैसे पेशेंट्स कल आपके पास आते हैं तो आप उनकी चिकित्सा कैसे करोगे? क्या उनको आप अभी भी खदीरा अरिष्ट और महामंजिष्ठा दोगे? You're going to have people in the future with at least 5 tablets, at least 5 tablets of immunosuppressant steroids. तो ऐसे पेशेंट को अगर आप एक दवा देते हो तो do you think it is going to have an impact? नहीं. You're going to have to be dealing with robots in the future. That's the action plan of the other sciences as well. पेशेंट को इतना दवाइयों से सक्षम करो कि कोई भी शास्त्र ऐसा ना कहे कि there is a medicine, there is a treatment. कोई भी शास्त्र ना कहे. And you do deal with the patient, right? कि पेशेंट ने 2 दिन स्टेरॉइड दे लिए, उनका दर्द बढ़ा है. Don't you deal with these cases? Patient is not taking a medicine for 1 day, 2 day, 1 week, and then you start your medicine और patient क्या कहते हैं? आपके दवा से दर्द बढ़ा. You experience that? Very common. In today's science, the skill, the art and the skill is how you take care of withdrawals. There's a whole different science and a whole different art of relapse. Psoriasis में भी 3-step treatment रहता है. First is चिकित्सा, फिर अपुनर्भव चिकित्सा, फिर प्रकृति स्थापन चिकित्सा. रिलैप्स रिकरेंस को सक्षम तरीके से आप अवॉइड कर सकते हो अगर आप अपुनर्भव पेशेंट की करते हो. अपुनर्भव कैसे करते हैं? उसका एक अलग कार्य है. ऐसे आयुर्वेद की दवा जिस पर रिसर्च भी हुआ है और शास्त्र में बताया, जो ऑलरेडी रिसर्च ओरिएंटेड है, कि यू क्योर अ पेशेंट ऑफ स्किन डिसऑर्डर, द साइंस ऑल्सो टेल्स यू हाउ यू कैन मेंटेन द मेमोरी ऑफ द सेल्स.
आप उस सेल की मेमोरी को मेंटेन, यू गेटिंग इट, आप समझ रहे हैं? आप उस सेल की मेमोरी को कैसे मेंटेन कर सकते हो, उसका भी पूरा शास्त्र दिया है, which comes in रसायन चिकित्सा, it comes in अपुनर्व चिकित्सा, यानी कुष्ठ फिर से वापस न आए, इसका पूरा चिकित्सा केवल आयुर्वेद, राइट? सो वी सी रोबोटिक सर्जरीज है, IVF है, IUI जैसे इनोवेशन टेक्निक्स है, फील्ड ऑफ डर्मेटोलॉजी सो एडवांस। हम देखते हैं, आई हैव डेल्ट विद अ पेशेंट ऑफ 6 times फेल्ड IVF, और केवल वैद्य लेट वैद्य दातार शास्त्री जी के सिंपल से नियम को फॉलो करके, रक्त पित्त की ट्रीटमेंट करके, टॉर्च टेस्ट पे काम करके, केवल और केवल चिकन पॉक्स की हिस्ट्री को क्लियर करके हमने नॉर्मल प्रेगनेंसी और नॉर्मल डिलीवरी देखी। आज से 100 साल पहले 1930s में लेट वैद्य दातार शास्त्री जी ने एक कहा था कि मैंने जो ये प्रिंसिपल्स बनाए हैं आयुर्वेद के बेसिस पे, ये प्रिंसिपल्स आज वैल्यू नहीं किए जाएंगे, बट आफ्टर 100 years आई विल बी वैल्यूड फॉर द प्रिंसिपल्स दैट आई हैव गिवन टू माय पीपल। एंड टुडे आज 100 साल भी पूरे नहीं हुए, और आज हम करोड़ों में डॉक्टर्स देखते हैं जो पंचभौतिक चिकित्सा करते हैं, जो काफ़ी सूक्ष्म चिकित्सा है। सो उसका भी काफ़ी प्रयोग हम करते हैं। सो अगेन केवल और केवल चिकन पॉक्स की ट्रीटमेंट, रक्त पित्त की ट्रीटमेंट करना, हम सभी पंचकर्म करते हैं फर्टिलिटी के लिए, पर रक्तमोक्षण नहीं करते। तो रक्तमोक्षण ये सर्वश्रेष्ठ और उत्तम पंचकर्म अगर हम बात करें इनफर्टिलिटी की, बंधत्व की, फील्ड ऑफ डर्मेटोलॉजी, इसलिए हमने कहा सिद्धांत ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आज मोस्ट ऑफ द इंडियंस दे सफर फ्रॉम अ प्रॉब्लम जिस कॉल्ड इज प्रतिशय। प्रतिशय की तकलीफ सबको पता है, एवरीवन? सर्दी सबको, एलर्जिक हो, नॉन एलर्जिक हो। महर्षि कश्यप बताते हैं कि प्रतिशय में क्या करना है? प्रतिशय में उपवास करना है। और मेरे गुरु मुझे कहते हैं कि आप प्रतिशय को देखिएगा प्रवाहिका की तरह, आप अर्श को देखिए नासा अर्श की तरह। क्यों कहते हैं? बिकॉज प्रतिशय प्रवाहिका। तो हमने इस थॉट को लिया और मैंने कहा कि मैं कुछ करता हूँ इस पेशेंट्स के बारे में, राइट? मैं कुछ करता हूँ। तो प्रतिशय के एक बहुत दीर्घकाल के प्रतिशय के पेशेंट आए, रनी नोज है, टैप वाटर की तरह नोज गिर रहा है, एंड मैंने प्रतिशय नहीं देखा, मैंने केवल नाड़ी देखी, मैंने दोष देखे, और मैंने ये देखा कि क्या क्या उनके चेंजेस है, और मैंने सिर्फ रिलेट किया प्रतिशय से। सो फिर मैंने प्रतिशय की चिकित्सा के लिए न्याग्रोदादिगण इस्तेमाल किया, पित्तज ग्रहणी मैंने इस्तेमाल किया। रसपर्पटी जो मोशंस को बांधता है, अगर किसी को लूज मोशन है, मोशन को बांधने का काम क्या? पर्पटी कल्पना का, वो कुटज पर्पटी है, रसपर्पटी है, राइट? फोड़ने का काम श्वेत पर्पटी, जोड़ने का काम रसपर्पटी। ऐसे दवा का हमने इस्तेमाल शुरू किया, और मैंने देखा कि 15 दिन के बाद जो व्हाटएवर रनी नोज है वो घट्टा आ रहा है, बांध के आ रहा है। सो मुझे फिर कैन यू रिलेट? मैं क्या बोल रहा हूँ एवरीबॉडी? आई स्टार्टेड डेवलपिंग अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ फेथ in this science and its beauty and the beauty in the medicines. Then I started adding a lot of आमपाचक द्रव्यस। ऐसी कौन सा सिद्धांत है जो सार किट्ट विभाजन भी कर रहा है और किट्ट के द्रव पाठ को कम कर रहा है? आम काढ़ा है, आमपाचक वटी है, ऐसा है जो सार किट्ट विभाजन भी है, किट्ट का द्रव पाठ भी कम कर रहा है। तो किट्ट का द्रव पाठ आपको कहीं पर भी कम करना है, आप जिस सोच से दवा दोगे, दवा उसी तरीके से काम करेगा। आप यहाँ के किट्ट के द्रव पाठ को कम करो, आमपाचक, आप यहाँ के किट्ट पाठ को कम करो, आमपाचक। सो ये आमपाचक की सुंदरता। एंड आई डोंट थिंक सो एनी साइंस, ऐसे कोई भी है साइंस जिसमें इतना सिंप्लिसिटी और इतना ब्यूटी बताया है। सो वी स्टार्टेड डूइंग दैट, और हमने देखा कि जिस तरीके का प्रवाहिका की चिकित्सा सूत्र है वो प्रतिशय में किया, और आज हम देखते हैं अल्पकाल तक, दीर्घकालीन, हर रोज आइसक्रीम के बाद भी वी आर शॉक्ड कि देयर इज नो रिलैप्स एंड नो रीअकरेंस। एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ त्रिसूत्र शाश्वतम पुण्य। शास्त्र का जो त्रिसूत्र है, इसको ही हमको स्टिक करना है। यू गोटा स्टिक टू दिस। एवरी डिसऑर्डर हैज सम प्रिंसिपल, मास्टर दैट प्रिंसिपल, गो अहेड। या इन हेल्थ केयर, अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्थ केयर में आते हैं तो शायद वो प्रतिशय के पेशेंट या वो प्रवाहिका को पेशेंट को भी प्रतिशय हो सकता है, राइट? अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर काम करती है तो शायद कुष्ठ विकार में भी उनको प्रवाहिका कुछ भी हो सकता है, राइट? सो आई गेस एंड आई फील एंड आई एम वेरी श्योर ऑफ दिस कि वैद्य का रिप्लेसमेंट नहीं है। नाड़ी के यंत्र तो बने पर नाड़ी की सूक्ष्मता नहीं आई, राइट? आप मेरे यू स्पेंड 10 minutes with me. If you spend 10 minutes with me, I will tell you to see at least 5 things in the nadi from any person. Any person. उसने खाना खाया हो, नहीं खाना खाया हो, क्या रहे, कैसे है, आप 5 चीजें तो ऐसे बोलोगे कि, और उसमें से more than 4 things, 4 to more than 4 things बोलेगे, सही है, you're right.
तो ये कोई भी मशीन नहीं बना सकती, नो बट मशीन कैन टेक। इफ देयर इज अ प्रेगनेंसी नाड़ी यू कैन इजीली से, इफ इट्स अ प्रतिशय की नाड़ी, हर प्रतिशय की नाड़ी 80% सेम रहती है। तो कई बार ऐसे हुआ था कि हम पेशेंट की नाड़ी देख रहे हैं और यहाँ पर केस अलग है, तो मैंने सारी चीजें बताई आपको ये होता है, तो उन्होंने कहा यस, तो मैंने बोला ये तो गलत लिखा है, स्टाफ को ले क्या है, तो बोले नहीं मैं मेरे मदर के लिए आया था। He'd come for his mother's consultation, जो ऑनलाइन थे, जो हॉस्पिटल में एडमिट थे, and we could tell his नाड़ी. So नाड़ी परीक्षा is a superb science. What I want to tell you is that AI, कई students, why am I specifically answering these things? Because हर Instagram DM पे, हर YouTube के कमेंट में एक ही, मैं 10 साल हो गए YouTube को, हर कमेंट में एक ही रहता है क्या कि AI आ रहा है। You know, I'll tell you one very good thing. मेरे एक बैचमेट थे और उन बैचमेट को मैंने आज इतने साल बाद पूछा कि ब्रदर व्हाई डिडंट यू प्रैक्टिस आयुर्वेदा, आज इतना सब स्कोप है, लोग फॉलो कर रहे हैं, तो उनका क्वेश्चन क्या था, उनका आंसर क्या था ये टाइम पे कि नहीं मुझे उस टाइम पे फियर था कि जो ट्रीज वगैरह सबको काटे जा रहे हैं, द्रव्य आगे के टाइम पे नहीं होंगे, तो आयुर्वेद प्रैक्टिस करके क्या होगा। So let me tell you, this science will never stop. This science is amazing. It will blow you out. This is amazing, right? तो बस सीखना क्या है, चिकित्सा सूत्र जिनमें फर्स्ट स्लाइड में बताया बर्निंग डिजायर, अगर है तो ही है, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल, राइट। सो एआई does not, again, I'm not against research, I really support research and I do my own research, I work with a lot of research people, but what do students need? See, 90% लोग students है जिनका एक ही रहता है, other people bog them down with this word saying कि आपके इस पे तो research नहीं है। We have a lot of research, but if you want to be master in your science, you need one thing, which is reread and reread. So before you go to research, what you really need is rereading. This is something जो हम नहीं करते. Half knowledge is dead. Half knowledge is dangerous. If you really put knowledge, because see, BMS, what's the best time to learn BMS? Can anyone answer me? What's the best time to learn BMS? का जो main science है, जो practical knowledge है, कब सीखना चाहिए? Anybody? कब सीखना चाहिए? BMS के बाद ना, कोर्स के बाद मैं जाऊंगा कहीं पर। Right from the first day of Ayurveda, right from the first day. ये शास्त्र लिखा गया है किसी डॉक्यूमेंट पे नहीं, ये शास्त्र लिखा है क्वेश्चन एंड आंसर मेथड में। So इसे सीखा भी जा सकता है क्वेश्चन एंड आंसर मेथड में। It's a गुरु शिष्य परंपरा शास्त्र, राइट? तो इसे क्वेश्चन एंड आंसर के बिना सीखा ही नहीं जा सकता। You can only learn the ethical Ayurveda science through the method of question and answer, which is first day. What is Ayurveda for you? You know, एक दिन एक फादर एक बच्चे को एक AI का गिफ्ट करते हैं, you know, यूनिट गिफ्ट करते हैं गूगल स्पीक, और फिर उस बच्चे को बोला जाता है कि आपको जो भी पूछना है, आपके बच्चे जो भी क्वेश्चन है आप इनको पूछिएगा। तो चलता ओके डैडी, आई एम सो हैप्पी, मेरे सारे क्वेश्चंस मैं उनको पूछूंगा। तो फिर बच्चा पहले ऑन करता है, तो फिर बच्चा बोलता है हाय आई एम एलेक्सा, हाउ मे आई हेल्प यू। सो बच्चा होता है वो वाओ वंडरफुल। तो एलेक्सा बोलता है प्लीज आस्क मी व्हाटएवर यू वांट टू नो। तो वहाँ पर वो बच्चा पूछता है, और नहीं पहले एलेक्सा पूछती है व्हिच लैंग्वेज डू यू प्रेफर। सो द बच्चा सेज कि हिंदी हिंदी हिंदी, आई विल आस्क इन हिंदी। एक्साइटेड रहता है ना, नया ये है। ओके आप आपका सवाल पूछिएगा। सो द बच्चा सेज भगवान के सामने खड़े रहने के बाद मेरी आंखें क्यों भरती है, मेरा मन, मेरा हृदय, मेरी आंखें क्यों भरती है भगवान के सामने खड़े रहने के बाद। तो एलेक्सा भी बहुत बढ़िया आंसर देते हैं, आप सबको समझे। एलेक्सा सेज ठीक है मैं इसका जवाब ढूंढती हूँ ढूंढती हूँ ढूंढती हूँ और ढूंढती ही हूँ। फिर बच्चा जाने दो, मुझे मेरा दूसरा सवाल पूछना है। तो दूसरा प्रश्न पूछते हैं। तो दूसरे प्रश्न में क्या होता है कि जब मेरी माता जी मुझे खाना खिलाती है और मैं जब खाना खाता हूँ, दोनों का स्वाद एकदम से अलग क्यों होता है? काफी स्टूडेंट्स है ना हॉस्टलाइट्स, तो रिलेट करेंगे, यहाँ का खाना और घर का खाना कौन रिलेट कर रहा है? एवरीबॉडी। तो जब मैं खाना ले रहा हूँ, वो होटल का क्यों ना हो, वो बेस्ट मेरे दोस्त ने बनाया क्यों ना हो, और मेरे माँ का क्यों ना हो, तो उसमें क्यों अलग है? तो एलेक्सा ने बहुत अच्छा आंसर दिया, मैं सोच रही हूँ। It's a science which is supposed to be experienced, and the number one thing what has kept Ayurveda alive is not you people, is not Ayurveda.
is not the practitioners of Ayurveda. The only one reason which has kept the world's first medical science alive is only the patients of Ayurveda. तो आज के लेक्चर के बाद मुझे आगे जाके ये भी सुनना अच्छा लगेगा जब आप एलेक्सा को पूछो, एलेक्सा व्हाट इज आयुर्वेदा, और एलेक्सा कहे एक जीवनम एक लक्ष्यम आयुर्वेदा. Again, I started coming across, one of our video reached 1 million and I was registered in the US panel of lichen planus. तो lichen planus के panel पे आने के बाद काफ़ी responsibility बढ़ी. A lot of US based patients started coming for lichen planus. उनका body पूरा black होने लगा. It is again a drug induced lichen planus, a very important case. और शुरुआत में सोच रहे थे क्या करना है क्योंकि पूरा बॉडी ब्लैक हो रहा है. What can we do? We are seeing कि अब पता तो है कोविड के बाद हो रहा है, कोविड के पहले भी हो रहा था. बट कोविड के पहले आई यूज्ड टू पर्सनली सी 2 people out of 50. कोविड के बाद आज टुडे एट प्रेजेंट 60 out of 100. 60 people, you were shocked. 60 लोग कहाँ से आ रहे हैं lichen planus के? So we started studying a lot about lichen planus and again सबका पढ़ाई कम हो गया, फिर आयुर्वेद पढ़ना चालू किया and we see that बहुत बढ़िया उसमें फायदा. So इसके आंसर हमें कैसे मिले? तो I want to tell you that एक दिन ओपीडी चल रही थी और एक पेशेंट का फोन आता है. ओपीडी के दौरान पेशेंट का फोन आता है, उनका कहना है मेरे बच्चे को अस्थमा का अटैक आ रहा है, मेरे को हाफना फील हो रहा है बच्चे को, क्या करें, वो पंप दिया तो भी फायदा नहीं हो रहा है, व्हाट शुड आई डू. तो मैंने बोला आपका नाम बताइए. तो उनका नाम मैंने एंटर किया, मैंने केस देखा, तो बच्चे का ट्रीटमेंट तो नहीं चल रहा है. तो मैंने बोला हैव यू शोन इट टू मी अर्लियर. तो बोलते नहीं मेरी बीवी का ट्रीटमेंट चल रहा है. बोले तो आपकी बीवी का नंबर बताइए. तो वाइफ का नंबर चेक किया, सॉ द केस. तो मैंने उनको एक ही चीज़ बताई ताकि उनको भागना दौड़ना ना पड़े. तो मैंने कहा आपके वाइफ का संदिग्ध वात का ट्रीटमेंट चल रहा है और उनको लगाने के लिए मैंने तेल दिया है. हाँ तेल दिया, वो हर रोज लगाती है. तो वो तेल अभी के अभी बच्चे को 4 चम्मच आधे कप दूध में दे दो और वो सेम तेल आप यहाँ पर लगाइए और शेक दे दो. और ये पेशेंट ने किया. 15 मिनट बाद फोन आया कि उनको आराम लग रहा है, अच्छा लग रहा है. मैंने बोला गुड, ठीक है, आप अभी आगे कभी आएंगे तो यू कम इन शो, मैं आगे की ट्रीटमेंट करूँगा. उनके वाइफ 1-2 महीना आए नहीं. तो आई वॉज ऑल्सो वेटिंग क्योंकि मुझे पेशेंट याद थे आने वाले. आई रियली वॉन्ट टू टेल यू ऑल, 3 महीने बाद पेशेंट आए इन अ प्लेस लाइक मुंबई. मुंबई में सभी लेजर जो स्किन के लेजर देते हैं, ये लेजर देने वाले कोई एक व्यक्ति है, तो ये वो थे. तो उनका 3 महीने बाद फॉलोअप आया मेरे पास और ये जब आए तो उन्होंने एक ही चीज़ मुझे बताई कि सर मेरे बच्चे को उस दिन आपने बताया तो फायदा तो हुआ, पर मेरे बच्चे के लिए ना यहाँ पर कुछ दाग थे, दाग, और ये दागों के लिए मैंने मेरे बेस्ट ऑफ बेस्ट लेजर्स किए. मैंने सब प्रकार की सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एंटी स्कार जेल, मैंने सारे जेल, सारे क्रीम, सब कुछ लगाया, पर मेरे बच्चे का ये स्कार कुछ अब तक गया नहीं. ठीक है, पर आपने दिया हुआ वो वात शामक तेल, वो क्या है वो टेल यू, कुछ अलग नहीं. वो वात शामक तेल को पीने से और लगाने से मेरे बच्चे का दाग आप यहाँ पर देखिए पूरी तरह से गया है. This also took me to the answers. This also took me to the answers of lichen planus, right? पेट में विष की चिकित्सा करना और यहाँ पर दागों को कैसे निकालना. क्योंकि हमने फर्स्ट स्लाइड में, पहले इनिशियल स्लाइड में क्या देखा, वात इज इक्वल टू डिस्कलरेशन. सो फिर हमने इस तरीके के वात शामक तेल, बला है, महानारायण है, महामाश है, ऐसे वात शामक तेल इस्तेमाल करने प्रतिसारण किया और नहीं छूटने वाले पेशेंट जब छूटने लगे तो काफ़ी आनंद हुआ. इस तरीके से हमने देखे ऐसे पेशेंट जिनके पूरे बॉडी पर lichen planus पिगमेंटोसिस है. अगेन लेट मी टेल यू, दिस इज द मोस्ट मिसडायग्नोस्ड कंडीशन. आया तो हमको क्या लगता है व्यांग है ना, वांग आलेला है, मेलाज्मा है, बट इट्स नॉट मेलाज्मा, इट्स डिफरेंट फ्रॉम मेलाज्मा, इट इज lichen planus पिगमेंटोसिस. पिगमेंटोसिस अलग, lichen planus अलग अलग प्रकार के होते हैं. हाइपरट्रॉफी, ट्रॉपिकल, देयर इज प्लानोपिलारिस, देयर इज पिग. सो अगेन कोई भी lichen planus हो, माय डिफरेंट, हाउ विल यू डील विद अ पेशेंट विद 12 sick days in the day, राइट? तो उसका सही अभ्यास होना काफी. एक्ने स्कार्स, एक्ने स्कार्स में हमने देखा है कि जो बड़े बड़े लेजर्स, वी डू द लेजर्स एज वेल, पेशेंट झारखंड के लेजर तो नहीं कर पाए, तो लेजर से भी जो खड्डे ठीक नहीं हो रही, केवल आयुर्वेदा के विद के एक नीडल, उसको एपिडर्मल और सबक्यूटेनियस के बीच में कौन सा लेयर है, एपिडर्मल, 3 लेयर है, एपिडर्मल सबक्यूटेनियस के बीच में सिंपल डर्मल लेयर. डर्मल से अगर हम विद कर्म सही तरीके से करते हैं, तो विद कर्म से पंच एलिवेशन अगर हम करते हैं तो वी सी स्कार्स आर लिफ्टेड प्रीटी वेल. यूनिट योग के अभ्यास, स्कार्स आप टाइमली रेचन दो,
हर वीक मृदुरेचन दोगे एंड स्कार्स में पेशेंट्स पे रिजल्ट्स आते हैं. आई हैव सीन 50% रिलीव इन स्कार्स विद ट्वाइस अ ईयर वमन विरेचन. सो सिर्फ पित्त का रेचन करने से हम देखते हैं स्कार्स में पेशेंट्स को काफी फायदा होता है. कैन यू हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? नेक्स्ट स्लाइड करनी है. मतलब क्या? तो फर्स्ट बेंच पे बैठना इज कूल. नहीं, इट्स नॉट कूल, राइट? फर्स्ट बेंच पे बैठना इज नॉट सो कूल. लास्ट बेंच पे बैठना क्या स्टूडेंट लाइफ में होता है ना, ये लेक्चर नहीं अटेंड करते, कोई पूछने वाला नहीं है ना, लेक्चर अटेंड नहीं करते हैं, बाहर जाते हैं. दिस इज द ओनली डे, एवरी डे इज प्रेशियस इन अ BAMS. 6-7 साल कैसे निकल जाते हैं, we really don't understand. Immediately चले जाते हैं, right? And then we have a lot of less time. So start doing not so cool things. Exercising every day is not so cool. संहिता पठन हर रोज का is not so cool. किसी वैद्य के पास जाके आपका परिपूर्ण समय देना और कम टाइम में ऐसे सिद्धांत सीखना जो आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहे is not so cool. हर रोज का पढ़ाई करना is not so cool. क्योंकि my dear friends, I want to tell you कि आपको भी बाहर जाना पसंद है, मुझे भी बाहर जाना पसंद है, बट मैंने हर रोज कॉफी पी के पढ़ाई करके करने की आदत डाली. आपको भी लास्ट बेंच पे बैठना पसंद है, मुझे भी लास्ट बेंच पे बैठना पसंद है. आपको भी मजा आता है, मुझे भी मजा आता है, बट मैंने फर्स्ट बेंच पे बैठ के बैठने की आदत लगाई. सो इन अ स्टूडेंट लाइफ, स्पेशली फॉर द फर्स्ट ईयर, हाउ मेनी फ्रॉम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, you come with a lot of enthusiasm and also with a discouragement कि मुझे MBBS में admission नहीं मिला. So start being not so cool. See the real side of Ayurveda. There's no other thing beautiful than this. है ना? तो वो करिएगा. एक स्टेथो पहन के ICU में फोटो डालने से लाइक्स आते हैं, बट आयुर्वेद OPD में उसके सिद्धांत सीख के पेशेंट की जीवन शैली बदलती है, उनका लाइफ ट्रांसफॉर्म होता है. मेकिंग सेल्फ मेडिसिन, सेल्फ प्रोडक्ट्स बनाइए, राइट? सेल्फ मेडिसिन बनाइए, कुमकुमादी तेल सब बनाते हैं, आप अलग बनाइए. माय एडवाइस टू ऑल ऑफ यू, डर्मेटोलॉजी के लेक्चर में आइए, कनक तेल बनाइए. मेक कनक तेल, मेक नालपरमादी तेल. आप देखे पिगमेंटेशन कैसे जाते हैं. मेक दिने सवलियादी तेल, दिने सवाला बार्क है, दिने सवलिया विद यष्टि मधु विद द बेस ऑफ कोकोनट ऑयल. कुमकुमादी पता है, मेक दिने सवलियादी. आप देखिए ट्रांसफॉर्म कैसे होते हैं पेशेंट पिगमेंटेशन की. दिने सवलियादी है, नालपरमादी है, कनक है. स्टार्ट प्रिपेयरिंग दीज ऑयल्स, इजीली बना सकते हैं. सर, डू वी हैव टाइम? ओके, सोशल मीडिया को आप यूटिलाइज इट, यू वांट टू रीच पीपल. वी हैव अ मीडियम. आज इट्स अ मीडियम अगेन, पंचकर्मा को सही तरीके से इस्तेमाल करिए. ऐसा पंचकर्मा करिए जो अल्पकाल में हो, दीर्घकाल तक फायदा दे. आपके नए मेथड उसमें डेवलप करिए. ट्राई एंड मेक पंचकर्मा इजी फॉर पीपल. I told you we do 1000 Vaman per year. We do around 25-30 Virechan per day.